Okay. So, good evening, students. Is my voice audible one last time? Is my voice audible, everybody? Okay. So let us get started. I'll be having a small grammar session, and probably after that, I'll be taking a speaking session for the very first time. And in speaking session, I'll be explaining the hints to you, and these hints are going to be very, very useful. But before we do that, let us understand, the important session of grammar, which is what we call as degree of adjectives. Now, yeah, is there anyone who could help me out reading the thing? Is there anyone who could help me out reading the session? So that, yes, anyone who could help me out in reading? Okay, Rajveer will do that. Very good, Rajveer. Hello, sir. Yeah. Is my voice audible? Yes, sir. Okay, fine. So, students, this session is a small session of adjective. Many students, you are required to utilize adjective in your speaking. When you are making comparisons, you are required to utilize adjective in writing when you are making comparisons. But unfortunately, very few students, regardless of the background they are coming from, know the exact usage of adjectives. So this is a small session that will help you clear out doubts of adjectives. Rajveer, please start reading. Yes, sir. Adjective. An adjective is a word which is used to describe, identify, modify, or quantify nouns or pronouns. Very good. Adjectives have three degrees that compare one thing to another. These three degrees of adjective express the intensity of adjective in increasing order. The three degrees of adjectives are positive, comparative, and superlative. Very good, Rajveer. So, as you all know, students, that adjective is a very important word in grammar. So, adjective is the word which helps to modify the noun, or it adds meaning to the noun. For example, Ram is a great boy. So, in this sentence, Ram and boy are nouns. But when I talk about, how good the boy is, the answer that comes is great. So, in this case, Ram is a great boy. Great is an adjective. Sachin Tendulkar is a great player. Great is an adjective once again. Rahul Dravid is a fantastic person. So over here, fantastic is an adjective. But adjective are of three types, or rather, there are three degrees of adjective. As you can see in front of the screen, the first one is positive degree, the second is comparative degree, and the third one is superlative degree. Okay, so let us go ahead now with the new slide. So what is a positive degree? Rajveer, could you read? Yes, sir. Positive degree. Positive degree is the base of the adjective. It denotes the mere existence of a quality. Examples of positive degree. Tina is wearing a red dress. Leopard runs fast. The big dog chased the cat. There are four pencils in the box. She is a beautiful girl. Mohan is an intelligent boy. The colorful butterfly is sitting on flowers. As you can see that in all the sentences you will find out that the bold words are adjectives. And what do we mean by positive degree? In a positive degree there is no comparison. You're only talking about a person or a thing or an animal itself. For example, when I say Tina is wearing a red dress, so we are only talking about Tina, we are not comparing anybody. So when we talk about a positive degree, it is only about it's the base of an adjective, and it is only for is only for a singular thing, a particular person, a particular animal, or a particular thing. The second type of degree is what we call as comparative degree. This is very important for you because this is the degree which you are going to utilize in speaking. Yeah, please read. Comparative degree. Comparative degree is used to compare one noun or pronoun to another noun or pronoun. In these instances, only two items are being compared. Words like than and to are used after a comparative adjective in a sentence to show comparison of the two things. Noun plus verb plus comparative adjective plus then plus noun. Example of comparative degree. This box is smaller than one I found. Rohan is smarter than Abhishek. My hair is longer than my sister. John is thinner than Bob. He is more intelligent than his brother. Apples are healthier than chips. Russia is a Russia is larger than France.
Okay, so the first degree was positive degree, in which you are only talking about one person, one thing, one animal, and so on. But comparative degree is only for when you want to compare two nouns or two pronouns, one noun, one pronoun, or two pronouns. याद रहे कि कंपेरेटिव डिग्री सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के कंपैरिजन के बीच में होती है. फॉर एग्जांपल, या दो चीजों के बारे में कंपैरिजन, या तो फिर दो एनिमल्स के बारे में. जैसे कि जो पहला एग्जांपल है, दिस बॉक्स इज स्मॉलर देन वन आई फाउंड. सो यू आर टॉकिंग अबाउट कंपेयरिंग टू बॉक्सेस. एक तो आपको जो मिला और आपके सामने जो बॉक्स है, जो आपके सामने बॉक्स है वो छोटा है इन कंपैरिजन टू द वन दैट यू फाउंड. रोहन इज स्मार्टर देन अभिषेक. तो आप दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, रोहन और अभिषेक. तो आपने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है. कैसे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनता है, कैसे सुपरलेटिव बनता है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट आफ्टरवर्ड्स. बट याद रहे, पॉजिटिव डिग्री इज फॉर सिंगल थिंग. Comparative degree is only for comparing two things, two animals or two persons. That's it. Okay. Remember one thing, ज्यादातर केस में then का इस्तेमाल होता है या तो फिर to का, जैसे आपके सामने है और सामने है. And the format is going to be something like this. Noun होगा, उसके बाद verb होगा. जैसे कि आप यहाँ पे compare कर सकते हो, noun is रोहन, उसके पास verb है is. Comparative adjective in this case smart का smarter हो जाएगा, वो comparative है. बाद में then लगा तो यहाँ पे then लगा, और वापस noun आता है यहाँ पे अभिषेक. तो ये आपको फॉर्मेट को याद रखना पड़ेगा व्हेनेवर यू आर गोइंग टू यूटिलाइज कंपैरेटिव डिग्री. और याद रहे, स्पीकिंग में बहुत इस्तेमाल होता है कंपैरेटिव डिग्री का. ओके, बाद में आता है सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड. यस, प्लीज गो अहेड. Superlative degree is used to compare two or more nouns. They are also used to compare one thing against the rest of a group. It expresses highest intensity, quality, or quantity of a thing in comparison to other things. Words like of and in are used after a superlative adjective in a sentence. An article, the, should be used before a superlative degree when modifying a particular noun. Okay, let me interrupt you right now, Rajveer. Superlative degree is when you want to compare the entire group, for example. So दो लोगों के comparison की बात नहीं है यहाँ पे. हम जो बात कर रहे हैं वो पूरे ग्रुप में है. फॉर एग्जाम्पल, राहुल द्रविड़ इज better than VVS Lakshman. But when I talk about Tendulkar is the best player in the world. तो जब मैं कंपेरेटिव डिग्री की बात करता हूं तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होती है. लेकिन अगर मैं पूरे, फॉर एग्जांपल, पूरे क्लास की बात कर रहा हूं, इन दैट केस यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूटिलाइज सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में एक चीज याद रखनी है आपको, कि अगर आप फॉर एग्जांपल नाउन का इस्तेमाल करते हो तो दी आगे लगाना जरूरी है. आई विल एक्सप्लेन दैट once Rajveer reads all the examples. Rajveer, could you read all the examples? Yes. Rohan is tallest in the class. This road is busiest of all the roads. Mount Everest is the highest mountain in the world. Seema is the most intelligent girl in the class. My house is the largest one in our area. The leopard runs fastest of all animals. Jupiter is the biggest planet in our solar system. मुझे बताने का कष्ट करेंगे राजवीर जी के मैंने दी का इस्तेमाल काफी एग्जांपल्स में किया है, काफी में नहीं किया है. तो दी का इस्तेमाल मैं कब करूंगा? आई वांट एवरीबॉडी टू जस्ट गो थ्रू इट. काफी एग्जांपल्स में मैंने दी का इस्तेमाल किया हुआ है. तो आई वांट यू पीपल टू एक्सप्लेन. यस, आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीबॉडी. दी का इस्तेमाल कब होता है? काफी में दी है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोहन इज टॉलेस्ट इन द क्लास. तो यहाँ पे मैंने दी का इस्तेमाल नहीं किया है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 7th वाले एग्जाम्पल में, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम. तो यहाँ पे मैंने दी का इस्तेमाल किया है. 3rd वाले में भी मैंने दी का इस्तेमाल किया है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. तो ऐसा क्यों है? यस, कैन एनीवन हेल्प मी आउट? वेरी गुड, दीपक हैज गिवन मी द राइट आंसर. इसका जवाब ये है फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप नाउन का इस्तेमाल करते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द 3rd एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओवर हियर यू हैव यूटिलाइज द वर्ड माउंटेन. तो यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल हुआ है. तो अगर नाउन का इस्तेमाल करते हो और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल, सुपरलेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि इन दिस केस हाई, हायर, हाईएस्ट, तो यहाँ पे हाईएस्ट है विच इज अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव. तो इसके आगे दी लगाना अनिवार्य है. वैसे ही अगर 7th एग्जाम्पल की बात करें, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम. तो ऐसे केस में आप देख सकते हो यहाँ पे कि प्लैनेट का मैंने इस्तेमाल किया विच इज अ नाउन, तो आगे दी का इस्तेमाल होगा.
अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ, let me take the first example. Rohan is tallest in the class. Rajveer, can you utilize this word by utilizing the word I mean rephrase this statement by utilizing the word the. So Rohan is tallest in the class. तो अगर मुझे the का इस्तेमाल करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं उसको ऐसे चेंज करूंगा, Rohan is Rohan the is the tallest tallest boy in the class. Exactly. So Rohan is the tallest boy in the class. Is it getting clear? Everybody understood? छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. Have you all understood the meaning difference between कब the का इस्तेमाल करना है? Everybody, very good. तो ये याद रखना है आपको कि whenever you are utilizing the या फिर noun का इस्तेमाल करते हो तो आगे the लगाइए, और ये सुपरलेटिव डिग्री में ये चीज इंपॉर्टेंट है. ओके, आगे बढ़ते हैं प्लीज राजवीर. Rules for degree of adjectives. First, when two objects or person are compared, a comparative degree is made by putting er to the adjective word in the association with the word then. We add only r to the words ending with e. When more than two objects or persons are compared, the superlative degree is made by putting est to the adjective word. We add only st to the words ending with e. तो नियम ये कहता है, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई वर्ड है, ये पहला स्मार्ट अगर बात करें तो ये पॉजिटिव डिग्री है. स्मार्टर इज अ कंपैरेटिव डिग्री एंड स्मार्टेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री. तो ऐसे केस में नियम ये कहता है कि अगर आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसको कन्वर्ट करना है कंपैरेटिव डिग्री में तो पीछे er लगाना पड़ेगा, और अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो पीछे est लगाना पड़ेगा. लेकिन फर्स्ट करो, अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं, आई एम टेकिंग द थर्ड एग्जाम्पल. इन दिस केस आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेट ऑलरेडी ई है, तो वापस आप ई आर नहीं लगाओगे. सो इट इज नॉट गोइंग टू बी एल ए टी आर ई आर, ऐसा नहीं होगा. इट इज जस्ट गोइंग टू बी एल ए टी ई आर. एंड फाइनली अगर है यहाँ पे लेट है तो इसका लेटेस्ट हो जाता है. तो याद रहे, अगर पीछे ई नहीं है वर्ड में तो पीछे सुपर कंपेरेटिव बनाने के लिए ई आर लगाना पड़ेगा और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी. लेकिन अगर पीछे ई है ऑलरेडी तो ऐसे केस में सिर्फ आर लगाए if you want to compare that, I mean convert that into a comparative degree, और st लगाए if you want to convert that into superlative degree. Strange, stranger, strangest. Old, older, oldest. Wise, wiser, wisest. जैसे कि wise में भी पीछे e लगा है तो सिर्फ r लगाया हमने comparative के लिए और st लगाया superlative degree के लिए. Is this thing clear everybody? Yes or no? Understood? राजवीर? Yes sir. Okay, fine. आगे बढ़ते हैं, चलिए. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रूल्स फॉर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. मैं चाहूंगा ये सारे लोग इसको बिल्कुल गौर से समझे और सुने. प्लीज रीड दिस. Adjectives of two or more syllable. When the adjective is long, that is of two or more syllable, we add the word more to form comparative form and most to form the superlative form. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Important, more important, most important. Interesting, more interesting, most interesting. Inexpensive, more expensive, most expensive. Popular, more popular, most popular. Now, can anyone tell me what do you mean by one syllable or two syllable or three syllable? Rajveer, can you explain? Can anyone explain what do you mean by one syllable, two syllable? Yeah, Rajveer, you can do that. Please explain. Sir, in which it means that if a word contains only one vowel sound, like. आपके देखो, मैं सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा. आप लोगों ने देखा कि मैं अगर आपको सुपर आई मीन पॉजिटिव डिग्री है तो उसको कंपैरेटिव करना है, तो जैसे कि स्ट्रेंज है तो उसका बन गया स्ट्रेंजर, एंड देन इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू अ सुपरलेटिव डिग्री इट बिकम्स स्ट्रेंजेस्ट, इजंट इट? ये तो सबको पता है. लेकिन ऐसा सब एडजेक्टिव में ये नहीं मुमकिन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्यूटीफुल की बात करें तो मैं ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बना सकता. इट इज नॉट पॉसिबल. तो नियम ये कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा सिलेबल है, सिलेबल मतलब क्या होता है कि आपका मुंह 3 बार घूमता है, 2 या 2 से बार ज्यादा बार घूमता है. जैसे अगर राजवीर स्ट्रेंज बताइए, स्ट्रेंज बोलिए, स्ट्रेंज. स्ट्रेंज. तो आपका सिर्फ अगर आप मुंह का एक्सप्रेशन देखेंगे तो एक ही बार स्ट्रेंज, यू डोंट नीड टू चेंज इट. लेकिन अगर ब्यूटीफुल बोलिए, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप. बताइए कौन से 3 पार्ट है? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड नहीं, ब्यू टी. देखा, आपका मुंह चेंज हुआ और बाद में फुल हुआ, आया ना? ब्यू टी फुल. इंपॉर्टेंट कितनी बार मुंह चेंज होता है बताओ मुझे? इम
इम्पोर्ट, three, और वापस स्टंट, मतलब 2 बार होता है। इंटरेस्टिंग तो बहुत बार होता है, इंटरेस्टिंग। तो आप अगर मुंह पे देखेंगे, मिरर के सामने अपना चेहरा देखेंगे, तो आपको पता चलेगा आपका चेहरा 3 या ज्यादा बार, 2 से ज्यादा बार घूमता है। इसको हम कहेंगे सिलेबल। एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो इसको हम 2 सिलेबल या 2 से ज्यादा सिलेबल वर्ड कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लेट, तो लेट देखो एक ही बार मुंह घूमता है, हाँ या ना? लेट, लेटर, लेटेस्ट। तो नियम ये कहता है कि अगर आपका जो एडजेक्टिव है 2 सिलेबल, मतलब आपका मुंह जो है 3 बार घूमता है, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, इसको प्रोनाउंस करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा बार, तो आप उसको पीछे ER और EST लगा के यू कैन नॉट कन्वर्ट दैट इनटू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे केस में आपको मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि इन दिस केस ब्यूटीफुल का बन गया मोर ब्यूटीफुल, और उसका बन गया मोस्ट ब्यूटीफुल। इज इट नाउ क्लियर एवरीबॉडी? जैसे कि एक्सपेंसिव है, तो एक्सपेंसिव, 3, इट्स अ 3 सिलेबल वर्ड। अंडरस्टूड राजवीर? yes sir, सो ऐसे केस में हम इसको एक्सपेंसिवर और एक्सपेंसिवेस्ट नहीं कर सकते, तो हमें उसको एक्सपेंसिव का मोर एक्सपेंसिव बन गया, तो मोस्ट एक्सपेंसिव। सो व्हेनेवर यू आर यूटिलाइजिंग दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स इन IELTS, इस छोटी सी चीज का जरा ध्यान करें ताकि आपकी गलतियां ना हो। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबल का मतलब पता चला एवरीबॉडी? राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, वेरी गुड। ओके, दैट्स ग्रेट। Yeah, Rajveer, is it understood? yes sir. Okay, fine. Finally, last thing. Yeah, Rules read. for degree of adjective. Irregular degree of adjectives. Hmm. There are some adjectives which do not form comparative and superlative form. They have irregular degree of adjectives and do not allow any rule. Do Good, not follow any rule. Yeah. sorry, good do not follow any rule. Good, better, best, bad, worse, worst, much, much, most, late, later, last, far, farther, farthest, little, less, least. तो ऐसे केस में फॉर एग्जांपल आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मेमोराइज देम। जैसे आपको पता होगा कि पास्ट टेंस में इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ ईट? राजवीर, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ ईट? पास्ट टेंस क्या है? एट। एट। और उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है? व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल? ईटन। इट इज द पास्ट पार्टिसिपल ईटन, और उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है ईटिंग। इज इट गेटिंग क्लियर? लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कोई रेगुलर वर्ब है तो उसमें ये नियम नहीं है फॉर एग्जांपल। तो ऐसे केस में जैसे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं वैसे ही इरेगुलर एडजेक्टिव होते हैं जो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। उसमें कोई नियम लागू नहीं पड़ता, जैसे कि गुड, बेटर और बेस्ट। सो यू नीड टू मेमोराइज देम। जैसे कि फार, फार्दर, फार्देस्ट, ये देखो इसमें HER ऐड हुआ है और HEST ऐड हुआ है। तो ये सारे जो आपके स्क्रीन के समक्ष जो एडजेक्टिव्स है, they are all what we call as irregular adjectives, and for that you need to memorize them. Is it getting clear? So this is the end of the adjective part. Let us have a small recap of what we did. So Rajveer, how many types of adjectives are there? Sir, three. 3 degrees of adjectives. First is positive Positive, degree, and comparative, comparative degree is when you want to compare two persons or two person, things or or two two animals. nouns. Exactly. And then finally Superlative. सुपरलेटिव में क्या करना है आपको? डी का इस्तेमाल कब करना है? जैसे कि राहुल इज द टॉलेस्ट, राहुल इज टॉलेस्ट इन द क्लास। लेकिन इफ यू वांट टू से बॉय, राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द Tallest क्लास, among. आपको दी आगे लगाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? Yes. एंड देन इफ यू अगर 2 और मोर सिलेबल एडजेक्टिव, 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल एडजेक्टिव है, तो आप उसको मोर और मोस्ट से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? Everybody, Rajveer, is it clear? Everybody, Yes. is it clear? So that we could move ahead with the new slide. Any questions that you wish to ask? I want responsive class. I am giving my 100% effort to explain you. I need equally 100% effort from your people, at least in form of response you can write. Clear? Okay. So let me go for a new slide, which is very, very important. Okay. So this is, yeah. Can you see a new slide, Rajveer? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. Thank you, Jinal. So let us go ahead. This is a speaking session, and I am, going to give you a small demo. Rajveer, keep your, mic on. मतलब mute, अपने आप को mute मत कीजिए. I'll explain everything. So as you all know, students, that speaking is going to be the most. I mean, speaking is also going to be an important module of IELTS. 9 bands का होता है.
काफी बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं और रादर इंग्लिश मीडियम के भी है, they are feared of speaking. So as you all know students that speaking consists of three parts. The first part is introduction, which usually goes on for 4 to 5 minutes. The second part is a clue card in which you are given a topic and you are supposed to speak on that topic for 1 to 2 minutes. And finally, the third part is what we call as counter questions, जहाँ पे आपको clue card के related topics पूछे जाते हैं. I hope you all know this form of, I hope you all know this, format of speaking, Rajveer. Yes, I sir. hope you all know this format of speaking. Very good. Okay, now I'm going to explain. जैसे कि ये आपके सामने है. So in the first part, you can see there are, सर काफी बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर मुझे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फर्स्ट पार्ट में. There are usually 7 to 8 questions being asked in the first part. A topic like this is given in the second part. Many students ask me a question, sir, if I don't know the topic or if I don't know what to speak in this topic, can I change my topic? It is not possible. You cannot change the topic. You need to be speaking on this topic only. And then finally, I believe the most difficult part is the third part, because the question length is very, very big. So, you need to listen to this very carefully and then you need to give the answer. तो ये आपका speaking का, 3 parts है. This is how the speaking is formed. Now, I don't know how many of you have, understand or remember the marking criteria of speaking. Can any one of you, Rajveer, can you tell me against which criteria your speaking is getting checked? Can you help me out? What are the 4 criteria against which your speaking is checked? So can anyone help me out, against which criteria your speaking is checked? जैसे कि writing में 4 criteria होते हैं. One is task achievement, second is cohesion and coherence, grammatical range and accuracy, और चौथा जो होता है वो क्या, vocab and lexical resource. So similarly, you have got 4 criteria against which your speaking is getting checked. Can you help me out, Rajveer? वो 4 criteria कौन से हैं? Sir, fluency. First is basically ये 4 criteria आपके हैं. Very good. First is Fluency. fluency and coherence. Second is lexical resource, Grammatical. grammatical range and accuracy and pronunciation. तो ये जो है, अगर आप जब स्पीकिंग करते हो, जब एग्जाम में जाओगे, क्योंकि मैं एग्जामिनर रह चुका हूं तो मुझे पता है कि ये 4 क्राइटेरियाज आप जब एग्जाम दोगे तो एग्जामिनर के सामने ये 4 क्राइटेरियाज नीचे लिखे हुए होते हैं, एंड अगेंस्ट दिस दे गिव यू द ग्रेड्स. सो दिस इज हाउ द 4 क्राइटेरियाज ऑफ स्पीकिंग आर. ओके, तो पहला जो क्राइटेरिया है, आप पढ़े फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस में क्या चीजें आपकी चेक होती है, जरा आप पढ़ेंगे. Yes, sir. Yeah. How easy it is for you to keep speaking? Do you pause or hesitate often while speaking? Do your ideas relate to the question? Can you link your ideas together? Can you explain what you mean even if you forgot the right word? So यहाँ पे ये चेक होता है कि कितना आसान है आपके लिए बोलना. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. कितना आप हेजिटेशन करते हो, क्या आपके आइडियाज क्वेश्चन के रिलेटेड है, क्या आप अपने आइडियाज को एक दूसरे से जोड़ सकते हो बाय यूटिलाइजिंग प्रॉपर कनेक्टिव्स, और अगर आपके पास वर्ड नहीं है फिर भी क्या आप एक्सप्लेन कर पाते हो. So this is what basically is checked in fluency and coherence. The second one is grammatical range and accuracy. Please could you read? Do you use a range of structures? Do you get the word order right? Do you use the right tense? How often do you make mistakes? Do your mistakes make it difficult to understand what you mean? So this is the criteria in which it is checked whether you are utilizing different type of sentence structures like complex, compound. वर्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले आता है, एडवर्ब जो है वो वर्ब के बाद आता है. दैट इज व्हाट वी कॉल एज वर्ड ऑर्डर. टेंस का सही इस्तेमाल है, आपको शायद सबको पता होगा. इन क्लू कार्ड मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स बीइंग आस्क्ड आर ऑफ पास्ट टेंसेस. तो आपके टेंस सही है या नहीं, फिर कितनी बार मिस्टेक्स करते हो, तो ये सारी चीजें आ जाती है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में. बाद में आता है प्रोनाउंसिएशन. रीड. How do you speak clearly? How easy are you to understand? Do you use stress and intonation accurately? मैं यहाँ पे एक चीज का गौर सबको ये कहना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना आप क्लियरली बोल पाते हो. प्रोनाउंसिएशन का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में काफी लोग साउथ इंडिया से आते हैं, काफी लोग नॉर्दर्न पार्ट से इंडिया से आते हैं, और जाहिर है हर एक का एसेंट थोड़ा सा अलग अलग होगा. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका एक्सेंट तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी आपकी जो बात है वो समझ में आनी चाहिए. सो योर एक्सेंट शुड नॉट बी सच दैट इट इज नॉट, आई मीन एग्जामिनर फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट to understand or comprehend what are you trying to speak.
तो ये समझना जरूरी है कि इसमें ये गलती नहीं होनी चाहिए, कि आप ज्यादातर ये केस में ये गलतियां नहीं होती, तो इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो चीज पे मैं ज्यादा जोर देना चाहूंगा वो है स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। स्ट्रेस एंड इंटोनेशन मतलब आपको कहीं पे ज्यादा, फॉर एग्जांपल हम लोग जब अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो कहीं कहीं पे वी स्ट्रेस, मतलब आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो जैसे कि इस स्टेटमेंट में मैंने आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो ही पे मैंने फोर्स किया, स्ट्रेस दिया, बिकॉज आई वांट टू गिव मोर, आई वांट टू गिव मोर फोर्स टू दैट वर्ड। वैसे ही व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव स्ट्रेस टू दोज वर्ड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ये फर्क पड़ेगा कि नेचुरल स्पीकर है या फिर मतलब कोई अभी अभी इंग्लिश सीखा हुआ है। सो व्हेन यू स्पीक स्टूडेंट्स, ट्राई टू गिव स्ट्रेस, इंटोनेशन देने की कोशिश कीजिए, इससे आपके बैंड ज्यादा बढ़ेंगे। ओके, एंड फाइनली लेक्सिकल रिसोर्स, या प्लीज गो अहेड। How wide is your vocabulary? या How accurately do you use words? Do you use collocations accurately? Do you use some less common words? अगर आप चाहते हैं कि आपके 7.5-8 बैंड आए, तो मैं चाहूंगा अपनी लेक्सिकल रिसोर्स मतलब कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए। वोकैबुलरी मतलब दो चीजें हैं, वोकैबुलरी मतलब अनकॉमन वर्ड्स, और दूसरा है लेक्सिकल रिसोर्स। लेक्सिकल रिसोर्स का मतलब अगर आपके पास मीडिया का टॉपिक है तो यू शुड हैव वर्ड्स ऑन मीडिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, सेलिब्रिटीज, मीडिया टाइकून, पेपराजी, चेकबुक जर्नलिज्म, ब्रॉड सीड्स, टेब्लॉइड, ये वर्ड्स मीडिया के वर्ड्स हैं। तो आपको मीडिया, जैसे कि मीडिया शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेलीकास्टिंग ओनली अनबायस्ड न्यूज, तो ये सब जो वर्ड्स है वो लेक्सिकल रिसोर्स में आते हैं। मैं बताना चाहूंगा सब लोगों को कि आईएलटीएस में ज्यादातर केसेस में 10 से 15 टॉपिक्स में से ही सवाल पूछे जाते हैं। दिस इंक्लूड्स टॉपिक लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मीडिया, देन यू हैव गॉट एनवायरनमेंट। तो अगर आप ये 10-15 टॉपिक्स के 10-15 वर्ड्स भी कर लो, तो आपको न सिर्फ स्पीकिंग में काम लगेगा, ऐसे में भी काम लगेगा। जैसे कि अगर एनवायरनमेंट का टॉपिक है तो मैं बच्चों को कहता हूं कि एनवायरनमेंट के टॉपिक्स बहुत पूछे जाते हैं। So why can you not, memorize words like global warming, greenhouse effect, deforestation, soil erosion, ozone depletion, herbivorous, carnivorous, omnivorous, amphibian, marsupial, organic, inorganic, poaching. तो ये words ऐसे हैं जो आप कोई भी, for example, whenever you are utilizing topic on environment, speaking about environment topic, ये टॉपिक्स, ये वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे तो आपके बैंड्स वैसे ही बढ़ जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसे 10-15 टॉपिक आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, एंड इफ यू डोंट हैव इट, आई विल सेंड यू द वोकैबुलरी ऑफ दोज वर्ड्स। मैं चाहूंगा ये वोकैब को इस्तेमाल कीजिए, मेमोराइज कीजिए, आपके बैंड्स काफी बढ़ जाएंगे। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्कोर लाइक 7.5, 8 बैंड्स इन स्पीकिंग, lexical resource is damn important. Understood everybody? Any questions, any doubts, students? I hope it is clear to what to what I'm speaking. Try understood everybody, write in the clue chat box. If it is not understood, I can explain it again. Okay, great. आगे बढ़ते हैं. Okay, then yeah. Now very very important, क्या करना है सर, मेरा स्पीकिंग में कैसे करेंगे? आपको सबको पता होगा कि आपकी आईएलटीएस के एग्जाम की स्पीकिंग जो डेट है वो आपके मेन एग्जाम के 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन के बाद आ सकती है। तो एग्जाम के दिन क्या करना है, प्लीज रीड। Be present at the venue at least 30 minutes before the interview. Before going into the interview room, take a deep breath. Dress appropriately, neither too casual nor too formal. Greet the examiner, say good morning, sir, madam, or good afternoon. Be polite, friendly, and relaxed. So please make sure that you go 30 minutes before the examination. शांति से, सुकून से एक डीप ब्रीथ लीजिए। ड्रेसिंग में काफी बच्चे पूछते हैं तो सर कि मैं कैसे करूं, ड्रेसिंग ऐसा करें जिसमें आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। इट शुड नॉट बी टू फॉर्मल, टू कैजुअल, बरमूडा पहन के नहीं चला जाना है, लेकिन फिर भी एक अच्छे आप जीन्स और टी शर्ट अच्छे से पहनेंगे तो भी चलेगा। ओके, और ग्रीट कीजिए, ऑलवेज हैव ए माइल्ड स्माइलिंग फेस। मैं सारे बच्चों को ये कहता हूँ कि व्हेन यू ग्रीट मीट द एग्जामिनर, नो मैटर हाउ मच स्ट्रेसफुल योर लाइफ इज, यू शुड नॉट शो दैट टू द एग्जामिनर। मतलब आप खुश रहिए, थोड़ा सी स्माइल लीजिए, मुस्कान लाइए, तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर भी एक हल्का फुल्का महसूस करेगा अपने आप को, एंड यू आर मोर प्रो यू आर मोर लाइकली टू गेट अ ग्रेट स्कोर। ओके, आगे ड्यूरिंग द इंटरव्यू पढ़िए। Sir, I didn't got the screen. या मिला आपको नाउ?
Yes, sir. Tips for part 1. Hmm. Make eye contact with the examiner. Although theoretically you can speak great English with your head down, the fact is you may not seem as confident. Although there is no mark for confidence, you need to present yourself in a positive way as possible. Hmm. Make sure you understand the examiner and are able to communicate with a mild, smiling face. Hmm. Okay. So, for first and the foremost thing, you always need to have eye to eye contact with the examiner. Yes, Ravani was asking me certain question that, yes, Ravani, I'm not able to get you. What are you trying to say? Ravani, what are you trying to say? I unmuted you. So I was asking for tips for online speaking. Like we will be having our exam online if we are giving. So speaking would be online only, right? I don't think that, speaking will be online, most of the time, because, it is almost, unless until you have got too many Corona cases, where do you stay? I think you stay in Pune. No, Maharashtra, Aurangabad. Okay, so I don't think that, it is going to be online. Online was only for, few days, when the Corona cases were very high. Most often, you are likely to go to the examination hall and give the speaking. But even if it is online, these tips, are absolutely helpful, because, eventually you need to have eye to eye contact. मतलब online है तो भी तो आपको सामने तो देखना ही पड़ेगा. तो मतलब these tips are anyhow going to be useful. Understood, Shravani? Okay, okay, thank you. Yeah. Okay, yeah, Rajveer, can you read? Yeah, so here, all you need to do is make sure that, you are confident. आपको सामने आई टू आई कांटेक्ट लगाना जरूरी है. मैंने काफी बच्चों को देखा हुआ है, इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं, बट दे आर नॉट, हैविंग आई टू आई कांटेक्ट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई टू आई कांटेक्ट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. माइल्ड स्माइलिंग फेस रखिए. ओके, देन Use may instead of can while asking questions. काफी बच्चे कैन का इस्तेमाल करते हैं. कैन इज अ कमांड एंड मे इज अ रिक्वेस्ट. तो हर बार मे आई कम इन सर, फॉर एग्जांपल, कुड यू, और जैसे कि काफी हेज शब्द का इस्तेमाल कीजिए. सर, कुड यू रिपीट द क्वेश्चन? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन इज वेरी ऑफेंसिव. सो वेन एवर यू आर गॉट स्पीकिंग, कुड यू रिपीट द क्वेश्चन? मैम, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस. कुड यू एक्सप्लेन मी इन सम अदर वे? आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन पोलाइट रहना बहुत जरूरी है. ओके, आगे बढ़ते हैं. Speak clearly and don't worry about your accent. Everyone has an accent when they speak English. Rehearse in advance to overcome any obvious problems. If you make a mistake, don't worry. Just correct yourself and keep going. If the examination asked you, if the examiner asked you questions about your hometown, neighborhood, or city, use good words about your hometown, etc. to impress the examiner. Do not use negative expressions to talk about your country or city. If you express all bad things always when you are talking, the examiner won't be impressed by your words unless you are asked to explain the problems. Okay, so I wish to tell each and every one of you that, there will be number of questions in which you are supposed to describe your city, or for that matter your country, or for that matter your school. तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि हर वक्त पॉजिटिव रहना है. आपने किसी भी हिसाब से, यू डोंट नीड टू बी नेगेटिव इन आंसर्स. चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो आपके स्कूल में, आपके होम टाउन में, मैं चाहूंगा कि आप पॉजिटिव बन के इसका जवाब दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी. सर, माई सिटी इज इज टू मच क्राउडेड. You cannot even have breath of fresh air. ऐसा बेतुका बोलना उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है कि सर, माय सिटी इज अ वेरी सेफ सिटी टू लिव, एंड पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव. तो इससे आपकी पॉजिटिविटी बाहर आएगी. तो मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि चाहे जो भी हो, हमें पॉजिटिव रहना है. आंसर्स भी पॉजिटिव आते हैं, अनलेस अंटिल यू आर आस्क्ड अबाउट द नेगेटिव. मतलब अगर आपको पूछा जाता है कि स्पीक समथिंग नेगेटिव अबाउट योर होम सिटी और डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग अबाउट योर होम सिटी, तो भले आप एक आध दो डिसएडवांटेज बोले, लेकिन आपका हर आंसर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव व्हेन यू स्पीक. ओके, आगे बढ़ते हैं. या प्लीज गो अहेड. In part 2, you have 1 minute to think about the topic and organize your mind. The examiner will give you a piece of paper and a pencil to take notes because speaking for 2 minutes without stopping is not easy. The biggest mistake students make is not to take notes. Candidates who do not take notes often say, I think maybe, well, or it seems to be. And are the sign of hesitations. It means you are not sure of what to say or
you don't have any ideas to express. In both cases, you are most likely to lose scores with long pauses and hesitations. Therefore, use notes to help you organize your mind and ideas. Remember what you say and how to say. Okay, so over here, what I'm now going to give you is a small demo of how to, speak the clue card. I want everybody to, concentrate on this. तो पहले मैं तो ये कहूंगा कि आपको जब क्लू कार्ड आता है तो काफी बच्चे ऐसा होते हैं कि क्लू कार्ड में स्पीकिंग में नोट्स नहीं लेते। तो पहला काम ये करना है, शायद राजवीर जी आपकी भी एग्जाम शायद नजदीक में ही है। आई सपोज यू हैव टेकन द डेट्स, एम आई राइट? Yes, sir. I've taken it's on 30th. Okay, 30th But of I have my October. speaking on 29. Okay, so in that, so you have got speaking after 6 to 7 days, am I right? So in No, a sir. way, I have got speaking earlier. On 29, I have speaking, and on 30, I have the हाँ, writing. मतलब आज कौन सा डेट हुआ? Sir, 22nd today हुआ ना? it's 22nd. So that's what I am telling, that your speaking is almost after a week or so, am I right? So No, sir. On 29, I have writing and all the thing, and on next day, I have speaking. हाँ हाँ, मतलब वही हुआ। मतलब ये जो टेक्निक्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो वहीं पे काम लगेगी। फॉर एग्जांपल सबके लिए जिनकी एग्जाम भी है तो उनको काम लगेगी। तो जो सेकंड टॉपिक आता है, सेकंड पार्ट आता है, उसमें मैं सब लोगों को कहूंगा कि यू आर गिवन अ पीस ऑफ पेपर एंड पेंसिल। अब जरा गौर से सुनिए, यहाँ पे आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है आपका, फर्स्ट कीजिए ये आपके सामने है, ये टॉपिक है। So, for example, peaceful place you visit regularly, you should include in your answer name of the place and location, facilities, your feelings after visiting this place. First करो, ये आपका speaking का topic है। मैं चाहूंगा सारे बच्चे इसको गौर से सुने। And you are supposed to, you are given, 1 minute. I believe all of you know that आपको second part में 1 मिनट दिया जाता है जहाँ पे आप points को jot down कर सकते हो। हाँ या ना? Everybody, Rajveer, you know that, Yes. Okay. So I don't know how many of you know, I mean, utilize this. सबको ये करना है कि आपको पॉइंट्स को जॉट डाउन करना है। काफी बच्चे ऐसा करते हैं कि सीधा बोलना चालू कर देते हैं। 1 मिनट का समय लीजिए और पॉइंट्स को जॉट डाउन कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि आप डायरेक्टली बोलना चालू कर दोगे तो एग्जामिनर विल थिंक दैट यू आर गिविंग अ मेमोराइज्ड आंसर एंड हेंस योर मार्क्स आर गोइंग टू बी डिडक्टेड फॉर दैट। तो मैं चाहूंगा कि आप पॉइंट्स को जॉट डाउन कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, सर पॉइंट्स को कैसे जॉट डाउन करना है, हाउ टू जॉट डाउन द पॉइंट्स। तो यहाँ पे याद रहे कि आपको अगर 1.5 से 2 मिनट तक बोलना है, आई विश टू नो हाउ मेनी वर्ड्स डू आई नीड so as to continuously speak for 1.5 to 2 minutes. I want answers from everybody. In order to consistently and continuously speak for 1.5 to 2 minutes, how many words do I need? Can anyone make a wild guess? How many words do I need in order to consistently and continuously speak? मैं वर्ड्स की बात कर रहा हूँ दीपक जी, राजवीर जी, मैं वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, सेंटेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। वर्ड्स कितने चाहिए? जीनल इज गिविंग मी आंसर अराउंड 200। मेरे को तकरीबन चाहिए 200 से 250 वर्ड्स चाहिए। आई नीड टू बी हैविंग 150, आई मीन 200 to 250 वर्ड्स। तो ऐसे केस में बहुत जरूरी है कि आप पॉइंट्स को जॉट डाउन कीजिए। और क्योंकि आप 200-250 वर्ड्स नहीं लिख पाओगे, तो ऐसे केस में बहुत मायने रखता है कि आप ये वर्ड्स को जॉट डाउन कीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक एंड राजवीर, यू आर गोइंग टू गिव मी, यू गॉट मोबाइल एट योर डिस्पोजल। आप ये मेरे से जुड़े हुए हो, लैपटॉप से जुड़े हुए हो या मोबाइल से? Sir, laptop. ओके, सो यू गॉट मोबाइल एट योर डिस्पोजल? No, sir. I don't have mobile. So is anyone having a mobile, with him or her? Is anyone having mobile? I want, him or her to give me timing for stopwatch. मुझे कोई ऐसा चाहिए जो stopwatch में time measure करता हो, क्योंकि मैं live demo देना चाहता हूँ। Is anyone having, mobile? Yeah, Deepak. Yeah. So Deepak, I am unmuting you right now. Yeah, who's going to help me out? Deepak? Just a minute. I think Bhumi, somebody, Richa Yes, is there. Yeah, Deepak is there. Thank you. Now, Deepak, have you got mobile with you? yes, sir. Okay, fine. So what I'm now going to do is I'm going to take 1 minute. So you tell me when exactly I should, let me first of all prepare myself. मैं प्रिपेयर करता हूँ अपने आप को लिखने के लिए। ओके, सो कैन यू टेल मी, दीपक जी, आप जब काउंटर स्टार्ट कीजिए तब मुझे बताइएगा कि आपने काउंटर स्टार्ट किया है, ठीक है? स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी है आपको। सो टेल मी, यू नीड टू गिव मी 1 मिनट टू जॉट द पॉइंट्स, बिकॉज यही तरीका आप एग्जाम में भी इख्तियार करोगे। या टेल मी।
Shall I start? Yes, sir. Yeah, have you started the counter? Yes, sir. Okay. Okay, my job is done. Can you tell me what is the time on the counter? 40 seconds, sir. 40 seconds. I hope everybody is understanding what I am trying to say. तो मैंने 40 सेकंड लिए अपने पॉइंट्स को जॉट डाउन करने के लिए. आपको कितने मिनट दिए जाएंगे दीपक जी? How many seconds are you going to get to jot the points? 60 seconds, sir. Very good. There you are. So you are given 60 seconds to jot the points. Now what I am trying to going to do is you are again going to make the counter to 0 and I am now going to speak. मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे बोलना है. Understood? Yes, sir. Okay. So just hold on. मुझे बताना आप जब वो करो तब. Yeah. Okay. Okay, sir. Reset किया. Okay. So I am now going to speak. Okay. My clue card topic is calm or serene place I visit on day-to-day basis. Among all the places I visit regularly, the place that has influenced me a lot is MJ Library. This library is located exactly in the heart of my city on busy Ashram Road area, exactly opposite of Ellis Bridge and besides Town Hall. This library has got wonderful facilities. So when one visits the library, he can borrow 3 to 4 books, can read those books and can update the knowledge on any subject. This library is open for 24 hours a day. This is one of the most striking features of this library. So whenever I want to visit this library, I do not have to look at my watch because I know it is going to remain open. This library is also being visited by a number of my friends and colleagues. So not only I read books over there, I can talk with my friends who are also my classmates and can know the latest happening in the industry. This library has got wonderful canteen facilities. So if I decide to stay in the library for 6 to 7 hours, and if I feel hungry, I do not have to go outside of the library because I know that healthy and hygienic food is available in the library at a very affordable cost. This library has got majestic environment. So if a person is reading books in the library, he can see beautiful trees, plants, and saplings planted in the corridor of the library, which makes the environment very calm and soothing. Eventually, I wish to say that after visiting this library, I feel extremely refreshed, rejuvenated for my next day's work. Okay, अब बताएं दीपक जी कितना टाइम हुआ? 1 minute 50 seconds, sir. Very good. So I hope this is clear to everybody. 1 minute और 50 सेकंड मैंने तकरीबन बोला. So that is what you are supposed to do, students. Is it clear, everybody? First of all, दीपक जी आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो. Thank you so much. Yes, sir. Yeah. Thank you. So I want everybody, have you understood everybody? First of all, ये बहुत important है कि आपने ऐसे बोलना है, पॉइंट्स को जॉट डाउन करना है और उसी पॉइंट्स को देन यू नीड टू गो थ्रू इट. आपने देखा कि मैंने कैसे पॉइंट्स को टिक किया और मैं बोलता गया, वही चीज आपको एग्जाम में भी करनी है. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? हैव यू अंडरस्टूड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी गो हेड? Rajveer, have you understood? Sir, sir, I have one question. Yeah, please go ahead. Yes, sir. So, for example, if you are writing the words like we've written, so can we just see while we are speaking and we can take the words? Obviously, you can speak, you can go through them. वही तो उसलिए तो कहा है आपको. So ये जो आपने पॉइंट्स जॉट डाउन किए उसको आप बोल भी सकते हो, उसको देख भी सकते हो. Absolutely fine. Yes. See, ज्यादातर केस में जिनल द टेंसेस दे आर, जैसे कि इस केस में पीसफुल प्लेस यू विजिट रेगुलरली इज द प्रेजेंट टेंस. लेकिन ज्यादातर केस में पास्ट टेंस का ज्यादा इस्तेमाल होता है. विजिट टू अ शॉपिंग मॉल, विजिट टू अ गार्डन, विजिट टू अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस. तो ज्यादातर केस में यू आर बेसिकली पास्ट टेंस का इस्तेमाल ज्यादा होता है. ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस एवरीबॉडी? यस, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस?
हैव यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ये आप टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये टेक्निक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। पॉइंट्स को जॉट डाउन कीजिए, तभी जाके आगे बढ़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो इफ देयर आर नो क्वेश्चंस, लेट मी गो फर्दर। ओके, आगे बढ़ते हैं। या राजवीर, कैन यू रीड? Yes, sir. In this part, use P prep method. Start with P. Make one sentence about your main topic, main point or topic. Then give 2 or 3 sentences to provide a reason. You need to support your ideas. Give E an example. Describe the example using 2 or 3 sentences. Finish by repeating P, your main points, but use a different sentence. If you have extra time, give a second example. काफी बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर मैं कैसे इसको बड़ा कर सकता हूँ, आंसर कैसे? तो ऐसा याद रहे, आपको सबको याद होगा, व्हेन यू राइट अ बॉडी पैराग्राफ इन योर एसे, सो हाउ डू यू नो व्हाट इज द मेथोडोलॉजी दैट यू फॉलो? तो आप क्या करते हो, पहली लाइन में आप टॉपिक सेंटेंस देते हो, फिर उसको एक्सप्लेन करते हो इन द सेकंड और थर्ड लाइन, finally you give an example and probably you restate, you give a concluding statement, not compulsory but you may write it. यही चीज का आप इस्तेमाल कीजिए स्पीकिंग में. So you give a topic sentence explained by utilizing words like this is to say that, in other words, the reason is, this is because. इसको करके एक्सप्लेन कीजिए, गिव एन एग्जाम्पल. ये टेक्निक का इस्तेमाल आपको थर्ड पार्ट में बहुत लगेगा. थर्ड पार्ट में जब आपको सेंटेंस क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 3 से 4 सेंटेंसेस बोलने हैं, तब इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कारगर होगा. यू कैन गिव फॉर एग्जांपल गेट अ वेरी गुड स्कोर. यस और नो की तो गुंजाइश ही नहीं है. ओके, प्लीज गो अहेड. In part 3, which seems to be the most difficult part of speaking test, when the examiner says, now I would like to ask you some more questions related to part 2, you know that part 3 is starting. Be ready. The part 3 could be asked to talk about changes either in your country or in international trends. Remember, in the past, you need to justify and support what you say by examples, explain story and statistics. आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये पार्ट 3 चालू हो गया है? तो एग्जामिनर ये बोलेगा, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू पार्ट 2. सो ये आपको पता चल जाना चाहिए कि नाउ द पार्ट 2 इज गेटिंग ओवर और हैज गॉटन ओवर एंड नाउ द पार्ट 3 हैज गॉट स्टार्टेड. तो आपको रेडी हो जाना है. ये चीज याद रहे, पार्ट 3 में लंबे क्वेश्चंस बहुत होते हैं, पार्ट 1 में छोटे क्वेश्चंस होते हैं एंड दे आर मोर टारगेटेड टुवर्ड्स यू. फॉर एग्जाम्पल, पार्ट 1 में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबीज. तो ये पार्ट 1 का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आपको आई के बारे में बोल, सर आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, जो भी है. लेकिन इन पार्ट 3 वैसे भले जनरल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन दे आर मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्मल पीपल. फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा पूछा जा सकता है व्हाट आर द हॉबीज दैट पीपल इन योर सिटी हैव. तो आपको लोगों के बारे में बोलना है, तो ये चीज का ध्यान रखना है. दूसरी बात, पार्ट 3 में लंबा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो यू नीड टू लिसन टू देम वेरी वेरी केयरफुली. जैसे कि डू यू बिलीव दैट द एडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म फार आउटवे द डिसएडवांटेजेस. अब आपको ये लंबा क्वेश्चन है, ये तो आपको सवाल आपके सामने होगा नहीं, आपको सिर्फ पूछा जाएगा, तो आपको सुकून से सुनना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 3 में. ओके, देन General strategies. This section introduces strategies that can be used in all the 3 parts of the test. The strategies can be briefly introduced in this session. In section, bad example of a speaking test. Do you like to watch movies? Yes. What sort? Drama. Do you have a particular favorite? No. Do you have a favorite actor? No. मतलब अगर आपने यस और नो में आंसर दिया, 1 वर्ड में आंसर दिया, तो आपका मतलब नक्की है कि यू विल हैव टू रीअपियर फॉर द IELTS टेस्ट. तो याद रखना है कि किसी भी हिसाब से, फॉर एग्जांपल, छोटे आंसर्स नहीं देने हैं. ओके, आगे बढ़िए. It is really important to produce language in the test to get a good score. Yeah. For all 4 grading criteria. The example above fails to do this. It is very short, so the examiner is not able to see any fluency. Very few words have been spoken, so it is difficult to assess pronunciation, vocabulary, and grammar. आपको हर वक्त ये याद रखना है कि आपका जो स्पीकिंग होगा वो 4 क्राइटेरिया, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आपका स्पीकिंग जो होगा वो 4 क्राइटेरिया के अगेंस्ट में ही टेस्ट होगा. मैंने जो बताया, फ्लुएंसी है, प्रोनाउंसिएशन है, वोकैब और ग्रामर.
तो आपको ये एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा, चारों चार चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको आंसर देना पड़ेगा. यू कैन नॉट गिव आंसर टेकिंग केयर ऑफ ओनली वन क्राइटेरिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, आगे बढ़ेंगे. Extend your answers by going from general to specific. जैसे मैंने बताया, जैसे कि अगर ऐसा है कि व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक, तो आप ऐसा कह सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक. तो आप यहाँ पे कह सकते हो, आंसर दीजिए. The strategy involves, sir, should I read the down one or up? या डाउन वन. Well, I'd have to say that I am a big fan of South Indian food. ओके, In particular, सॉरी. तो आप क्या करें, जनरल टू स्पेसिफिक जाइए. काफी बच्चे ऐसा बोलते हैं, सर मैं ज्यादा नहीं बोल पाता. तो आप क्या करें, जनरल से स्टार्ट कीजिए एंड देन बिकम गो टू मोर स्पेसिफिक. जैसे कि इन पर्टिकुलर. I really like to eat varieties of dosa as it is made fresh and lighter on stomach. For instance, rava dosa is not only made fresh but also healthy and provides proteins and carbohydrates in right proportion. अगर आप ऐसा बोलते कि व्हाट टाइप ऑफ फूड यू लाइक, आप सीधा आंसर देते थे साउथ इंडियन फूड, तो आपका आंसर वहीं पे खत्म हो जाता. लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहली लाइन में हमने जनरल फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन फूड. अब उसको और you basically you can explain कि in particular I really like to eat varieties of dosa as it is made fresh and lighter on stomach. बाद में आपने एग्जांपल दिया, for instance rava dosa is not only made fresh but also healthy and provides proteins and carbohydrates in right proportion. तो you have gone from being general to more specific, तो उससे आप ज्यादा बोल पाओगे. That is very very important. एक दूसरी मैं चीज कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो गिव सिलेक्शन ऑफ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीज बिल्कुल गौर से और ध्यान से सुने. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाता है टूरिस्ट प्लेस यू लाइक द मोस्ट, राजवीर जी आप मुझे बताने का कस करेंगे, आप क्या करोगे? अगर टूरिस्ट प्लेस यू लाइक द मोस्ट है तो आप क्या लोगे? कैन एनीवन टेल मी if I were to speak on a tourist place, कैन राजवीर जी आप मुझे बता पाओगे क्या लोगे आप, कौन सा प्लेस लोगे? आपको पता होगा ये आईएल टेस्ट में टॉपिक आता ही है. Yes, sir. So can you tell me exactly which place are you going to take? Sir, Gateway of India. Richa is saying that Agra. Gateway Very of good. India, sir. Gateway of India. Very good. Fair. Can anyone make a guess? Can you talk about? Yes, I want answers. I don't know how many of you. I mean, why you people are not giving me answers? अरे आप कोई नाम तो बताइए जिनल जी, नाम तो बताए कौन सा प्लेस लोगे आप? I want answers from everybody. Which place are you going to take if you are asked this question? Very good. अब आ रहे पोरबंदर, राजमहल, ताजमहल, अंबाजी टेम्पल. ठीक है, बहुत ठीक है. मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है. सो व्हेन यू आर धर्मशाला, ओके. नाउ एक चीज बिल्कुल गौर से सुनिए इसको. मैं माउंट आबू ले सकता हूँ, उदयपुर ले सकता हूँ, मांडू ले सकता हूँ, मनाली ले सकता हूँ, धर्मशाला ले सकता हूँ. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ सकती है, फर्ज करो आपने उदयपुर लिया, बिल्कुल गौर से सुने. तो उदयपुर में अगर आपको 200 से 250 वर्ड्स बोलने हैं तो यू कैन नॉट ब्लफ. फॉर एग्जांपल उदयपुर इज अ सिटी ऑफ लेक्स. फिर उदयपुर इज वेरी वेल नोन फॉर फोर्ट्रेसेस. द फूड ऑफ उदयपुर इज ऑल्सो वेरी गुड. लेकिन इससे क्या होगा, आप ज्यादा बोल नहीं पाओगे. यहाँ पे आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको ऐसे चीज को लेना पड़ेगा जहां पे आपको पॉइंट ज्यादा मिले. एक चीज का याद रहे, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है दैट डज नॉट नेसेसरली मीन यू विल बी एबल टू स्पीक एट लेंथ. तो सर अगर आप होते तो क्या करते? मैं पता है क्या लेता, मैं ना आगरा लेता, ना उदयपुर लेता, ना माउंट आबू लेता, मैं राजस्थान लेता. सर आप बोलोगे कि सर मैं राजस्थान क्यों लूंगा? देन आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ प्लेसेस टू स्पीक अबाउट. अगर मैं उदयपुर में अपने आप को सीमित कर देता हूँ तो आई विल ओनली बी रिक्वायर्ड टू स्पीक ऑन उदयपुर. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एवरीबॉडी? Yes. राजवीर, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, अगर मैं राजस्थान बोलता हूँ तो राजस्थान में क्या, क्यों हम राजस्थान एक अच्छी जगह है नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं. तो ऐसे केस में होगा क्या, इफ आई स्पीक अबाउट राजस्थान, इफ आई टॉक अबाउट राजस्थान, देन व्हाट वुड हैपन इज देन आई हैव गॉट नंबर ऑफ प्लेसेस टू स्पीक अबाउट. तो अगर मेरे 2 मिनट का टाइम है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सर आई द प्लेस दैट आई लाइक द मोस्ट टू विजिट is Rajasthan. Then I can start speaking about Mount Abu. It's a hilly place. The temperature is lower over there, and there are lots of places to visit in Mount Abu. लेकिन मेरे पास ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. मैं आ जाऊंगा उदयपुर पे, उदयपुर में 3-4 सेंटेंसेस बोलूंगा. Then I can talk about Jaipur. It's what we call as pink city.
तो वैसे केस में आप ज्यादा केसेस, ज्यादा चीजों के बारे में बोल पाओगे। तो जब आपका स्पीकिंग का टॉपिक आता है, बिल्कुल जबरन जल्दी से बोलना स्टार्ट ना कीजिए, 4 बार सोचिए क्या मेरे पास इस टॉपिक के बारे में ज्यादा पॉइंट्स है, ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। कोई भी टॉपिक में ज्यादा प्रॉपर नाउन्स आते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। जैसे कि अगर टॉपिक आता है, राजवीर जी मैं आपको पूछने की कोशिश करूंगा, अगर आपको टॉपिक आ जाता है कि गिफ्ट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम समबडी, तो किसके बारे में बोलोगे? हमें ज्यादातर गिफ्ट्स क्या मिलती है? व्हाट गिफ्ट्स डू आई यूजुअली गेट, डू वी यूजुअली गेट? Sir, Yes, for example pens, yes or no? yes, sir. Then any other topic? ये IELTS का ही टॉपिक है, बताने का कस करेंगे। पेन, Sir, क्या? uh, स्मार्ट uh, वॉच, पेन, a garden. सॉरी, flowers. Sir, Now Bharti has told me flowers, very good. Pen. अब मैं भारती जी को ये बताना चाहूंगा फोटो फ्रेम्स, वेरी गुड। सो मैं बताना, या आप कुछ बोल रहे थे राजवीर जी? Pratik sir. या सो काफी लोगों ने ऐसा बोला पेन है, फोटो फ्रेम है। अब मैं, जिन्होंने फोटो फ्रेम बताया है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि फोटो फ्रेम के बारे में 150 से 200 250 वर्ड्स बोल के दिखाए। Is it possible to speak for 250 to 300 words on a topic of pen? राजवीर जी पॉसिबल है पेन के बारे में 200 वर्ड्स बोलना? प्रयत्न Sir. कीजिए। मैं जानना चाहूंगा कौन प्रयत्न कर सकता है और कौन इफेक्टिवली 200 वर्ड्स बोल सकता है। मैं तो नहीं समझ सकता कि 200 वर्ड्स बोल पाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पीक फॉर 200 वर्ड्स। तो ऐसे केस में एक सर गुरमरीत ऐसा कह रहे कि सर एक से ज्यादा गिफ्ट मैं ले सकती हूँ। नो, ये भी नहीं कर सकते आप। तो ऐसे केस में सर करे क्या? तो ऐसे केस में ऐसा सोचो। हाँ जी बताइए राजवीर जी। Sir, can we speak on like I got a like a artificial grass, a इसके grass बारे toy in which I was having all the artificial cow, buffalo, etc. कर सकते हो, लेकिन क्या 200 वर्ड्स बोल पाओगे राजवीर जी? इस पे 200-250 वर्ड्स बोल पाओगे? आप क्यों मेहनत करते हो, क्यों मशक्कत करते हो? मैं उसको आपको आंसर देता हूँ। अगर आपको गिफ्ट आता है तो क्यों ना मैं बोलूं मोबाइल के बारे में। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मोबाइल में आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट द स्पेसिफिकेशंस, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट द एप्लीकेशंस, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट द कैमरा, you can start speaking about the speed, you can start speaking about many things. Are you getting what I am trying to say? तो कहने का तात्पर्य है कि टॉपिक ऐसा लो जिसमें आप ज्यादा बोल सकते हो। तो आपको सर मुझे मोबाइल की गिफ्ट कभी मिली नहीं है, मैं इतना लकी हुई नहीं कि किसी ने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया है। तो भैया कौन चेक करने गया है कि आपको मोबाइल मिला कि नहीं मिला? आप मोबाइल के बारे में बोलिए, ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, ज्यादा खींच पाओगे आप इसको। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसका जरा गौर कीजिए। जब आप बोलना चालू करते हो तो आप ये सोचे कि क्या आपको इसके बारे में ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं या नहीं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस और नो? यस और Yes, नो? yes. अंडरस्टूड? तो ये चीज का जरा ध्यान रखना है। जरा आप फॉर एग्जांपल चैट में लिखे तो आपको, मुझे भी पता चले कि आपको पता चला है कि नहीं। ओके, सो ये चीज का आपको याद रखना है, ये छोटी सी चीजों का याद रखना है। दूसरी बात, मैं सबको ये कहता हूं कि आप क्या करें कि ज्यादातर आईएलटीएस के स्पीकिंग के टॉपिक में मोर और लेस टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड। जैसे कि अगर टॉपिक आता है मोबाइल यू हैव रिसीव्ड, आई मीन सॉरी, गिफ्ट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम समबडी, गिफ्ट यू हैव गिवन टू समबडी, योर फेवरेट सोविनियर, योर पर्सनल पोजीशन यू लाइक द मोस्ट, मतलब चारों टॉपिक अलग अलग है। तो चारों टॉपिक के बारे में अलग अलग आंसर प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। यू कैन ओनली प्रिपेयर अबाउट मोबाइल। तो मोबाइल के बारे में बोलोगे तो आप ये चारों आंसर्स को कवर, चारों क्लू कार्ड को कवर कर पाओगे। तो इसको हम कहेंगे मैपिंग ऑफ टॉपिक्स। दूसरी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर टॉपिक ऐसा आता है योर फेवरेट फैमिली मेंबर, या तो फिर आता है ओल्ड पर्सन यू लाइक द मोस्ट, अ पर्सन हु हैज हेल्प्ड यू इन योर चाइल्डहुड, ओल्ड पर्सन यू लाइक द मोस्ट। तो ऐसे केस में सबके लिए अलग अलग आंसर तैयार करने की जरूरत नहीं है। इन सबके लिए आप एक ही आंसर तैयार कर सकते हो। जैसे कि मैं दादाजी के बारे में प्रिपेयर कर लूं तो दादाजी के बारे में प्रिपेयर कर लूंगा, अगर ग्रैंडफादर के बारे में प्रिपेयर कर लूंगा तो शायद 4-5 आंसरों का एक ही आंसर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओल्ड पर्सन यू लाइक द मोस्ट, दादाजी के बारे में बोलिए। फैमिली मेंबर यू लाइक द मोस्ट, उसमें भी दादाजी के बारे। आपको वैसे भी एक ही क्लू कार्ड पूछा जाने वाला है एग्जाम में,
आपको 4 क्लू कार्ड तो पूछे जाने वाले नहीं है। तो अगर आपने 5-6 क्लू कार्ड के टॉपिक्स है उसके बारे में एक ही आंसर तैयार कर दिया तो आपका काम आसान हो जाएगा और आप बोल भी पाओगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एवरीबॉडी? राजवीर जी पता चला? Yes, sir. मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि ज्यादातर केस में 5 या 6 ऐसे क्लू कार्ड टॉपिक है जो आप मेमोराइज कर लीजिए, जैसे कि योर फेवरेट सिटी, योर फेवरेट पर्सन, योर फेवरेट ऑब्जेक्ट, योर फेवरेट प्लेस, योर एक्टिविटी दैट यू लाइक द मोस्ट, योर फेवरेट बुक। तो ये या फिर फेवरेट टेलीविजन सीरियल, ये ज्यादातर केसेस में इसके बारे में इर्द गिर्द क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, बिकॉज अदरवाइज यू वोंट बी। जैसे कि ताजमहल है, योर फेवरेट मॉन्यूमेंट पूछा जाता है, तो ताजमहल में आप भले ही कितना ही इंग्लिश अच्छा क्यों ना हो, you won't be able to speak about ताजमहल for 200-250 वर्ड्स। तो ऐसे टॉपिक्स को मेमोराइज कर लीजिए। इंग्लिश तो अच्छा करना ही है लेकिन काफी टॉपिक्स को आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड। सो आई टुक दिस लेक्चर स्पेसिफिकली ओनली फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ताकि उनको पता चले कि आपको कैसे बोलना है, कैसे प्रिपेयर करना है, स्मार्ट वर्क करना है, मजूरी नहीं करनी है, मेहनत नहीं करनी, मतलब मेहनत तो करनी है लेकिन गधा मजूरी नहीं करनी है आपको। फॉर एग्जांपल यू ओनली नीड टू बी वर्क एक्ट स्मार्टली, ताकि आप ज्यादा बोल पाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिफोर आई कंक्लूड माय लेक्चर, पॉइंट्स को जॉट डाउन कीजिए। पॉइंट्स को जॉट डाउन करेंगे तभी जाके आप ज्यादा बोल पाएंगे इन द सेकंड पार्ट। Any questions? So I can ask, I mean you can ask me any questions. It's almost 8 p.m. right now. I hope you enjoyed this session, everybody. Yeah, Richa को पूछना है। Yeah, Richa, I'll just unmute you. Yeah, please, Richa, you can ask me a question. Sir, I have taken date of 7th May for LIW pen and paper based test. Very good. So I want to ask you that if I want to practice for speaking, so daily test से मतलब अभी LIW के तो टेस्ट every weekend होता है, तो स्पीकिंग का टेस्ट होता है या मतलब उसको मुझे प्रैक्टिस करना है? Speaking जैसे so let me tell you students, because I am not there next week, as I have all told you that I and Bijal ma'am are going for a family function, so I mean I won't be there, but तो इसलिए मैंने लेक्चर अभी लिया, लेकिन कल वापस स्पीकिंग भी है, 8:30 बजे स्पीकिंग है रिचा, so you can take the speaking test. Yeah, you can do that. Yeah. Or else where do you stay, Richa? Apart from this, sir, I want actually I was leaving to Bhavnagar until now, but I'm currently on my way to Ahmedabad. मैं आज से ही अहमदाबाद शिफ्ट हो रही हूँ। तो आप जो अहमदाबाद में हो तो आप तो यहाँ पे आ जाओगे तो भी स्पीकिंग तो होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे हर रोज आ सकते हो। यू कैन कम डाउन टू अवर मेन ऑफिस। ओके सर, ठीक है। So you can do that. Anyone can do that. That's not an issue. और वैसे भी स्पीकिंग होता है 2 बार, हम लोग एग्जाम में, मतलब हम लोग हफ्ते में 2 बार स्पीकिंग करवाते हैं, तो स्पीकिंग आप दे सकते हो। We are giving emphasis on speaking, so don't worry. Yes, मतलब ये 2 दिन के अलावा जैसे मेरा मेन फोकस स्पीकिंग पे, बिकॉज मुझे थोड़ा हेजिटेशन होता है, लाइक In कोई that case, I would अननोन recommend. पर्सन Yeah, की। I understand. But in that case, you can do one thing. You can come over here and you can do the speaking. एक हफ्ते की तो बात है, आप आ जाओ ना रीचा जी. I'll help you. Don't worry. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Any further questions that anyone would like to ask before I discontinue? I hope that this session helped you out. कैसे बोलना है। अब जब आप प्रैक्टिस करो, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, स्पीकिंग में अगर आपने आपको इम्प्रूव करना है तो आप क्या करें, यू कैन मेक अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल 2-3 लोगों का ग्रुप बना सकते हो और आप हर रोज आधा घंटा बोलने की कोशिश कीजिए। एंड इवन इफ यू डोंट हैव फ्रेंड्स, देयर इज नो नीड टू वरी, यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्या जरूरत है फ्रेंड्स की, आप मिरर के सामने बोलिए। आप फॉर एग्जांपल स्पीकिंग का टॉपिक है, खुद बोलना चालू कीजिए। जितना बोलना चालू करेंगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट पाओगे अपने आप को। ओके, एनी फर्दर क्वेश्चंस दैट एनीवन विश टू आस्क? एनी फर्दर क्वेश्चन या इज देयर? नो। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, रिचा जी आप बोल सकते हो, बट यू कैन स्पीक। आई मीन देखिए, ये स्पीकिंग जो है आपको डे टू डे लाइफ में भी काम लगेगा। I always tell my students that don't think IELTS as a passage or a pathway or a gateway to go abroad. मतलब आपको IELTS को ऐसे लेना है, कि this is also going to help you improve your confidence. मैंने काफी बच्चों को देखा हुआ है कि IELTS की एग्जाम देने के बाद काफी अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, अपने आप का उनका इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ जाता है। तो आप
हर रोज स्पीकिंग की प्रैक्टिस कीजिए, हर रोज न्यूज़पेपर पढ़े। काफी बच्चे ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया है तो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर आप इंप्रूव हो ही जाएंगे, डोंट वरी। और अगर आप मेरी जरूरत कहीं पे भी है तो आई एम हियर टू हेल्प, डोंट वरी। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? सो लेट मी डिसकंटिन्यू। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कल 2 लेक्चर होंगे। मैं बताना चाहूंगा कल 2 लेक्चर होंगे। एक होगा 7 बजे जो बीजल मैम लेगी, सबको मैं बताना चाहूंगा, और एक होगा 8:30 बजे जो जेपी सर लेंगे, जिसमें आपका स्पीकिंग होगा। क्योंकि हम लोग अगले वीक में लेक्चर नहीं ले पाएंगे, इसलिए मैं कंपेंसेट कर रहा हूँ। मैंने आज ले लिया जो मैं मंडे को लेने वाला था, तो मैंने I took it today, and Bijal ma'am, she might not be able to take the lecture next week, so she'll be taking once again tomorrow. तो आपका एक भी मिस नहीं होगा स्टूडेंट्स, वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट। और 8:30 बजे मतलब कल आप जरा अपने आप को अवेलेबल रखिएगा। 7 बजे भी लेक्चर होगा शायद, और 8:30 बजे भी लेक्चर होगा। अंडरस्टूड एवरीबडी? Okay. Yeah, thank you so much. Thank you, Rajveer. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Wish you very best of luck for the examinations. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. sir. Sir, Yeah. sir, can you tell me like in the introduction part? Hmm. Yeah, so sir, in that also we can make the points, or directly we have to speak? No, no. In first part and third part, you are not given time to make the point. So you need to speak instantaneously. आपको तुरंत ही बोलना पड़ेगा. Okay, sir. So And then, sir, we can speak like, for example, in part 1. So if the question is asked, so we have to speak, we have to check the time also, or we can no, speak, the examiner will stop us. you are talking about the first part or third part or second part? First part, sir. फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट पे आपको सिर्फ इतना याद रखो, 4 से 5 सेंटेंसेस बोलने हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर आस्क्ड क्वेश्चन लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपको 4 चीजें इंक्लूड करनी है। माय नेम इज Rajveer Singh. I have completed my 12th standard from XYZ college. Currently I am preparing for IELTS and my future plan is to go to Canada. Simple. Tell me something about your hobbies. Tell me something about your family. I live in a extended family system. I have I have got my parents staying with me. I have also got my grandfather and grandmother who are senior citizens, and we live happily together. तो देखो 4-5 सेंटेंसेस सब जगह बोलना है आपको। Yes, sir. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट में तो आपको वैसे ही बोलना है। खाली सेकंड पार्ट में मैंने जैसे आज बताया कि आप पॉइंट्स को जॉट डाउन कीजिए एंड देन यू कैन स्पीक ऑन दोस पॉइंट्स। क्लियर? Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you.